Hello, students. I welcome you once again to this online lecture series that we have been doing since quite some time. And we had started the chapter The Third Level by Jack Finney in the last video lecture that had been uploaded. And today we will continue from where we had stopped. We had stopped on page number 2 in your book Vistas. Till now in the story we have seen that there is Charlie, who is a 31-year-old man, and he is the protagonist of the story, and he has been of the belief that there is a third level at the Grand Central Railway Station in New York. And he firmly believes that apart from the two levels that already exist, he has visited a third level, and he is going to tell us about that adventure and that visit to the third level of that railway station, which none of the other people believe. Okay, so we have kind of discussed the themes of the story, and we have the theme of time travel, and this is basically a chapter which deals in science fiction maybe, and it has a lot of imagination, and it demands the readers to put their imagination at work, because we have to keep on imagining with Charlie. So जिस तरह चार्ली इमेजिन करता है that there is a third level, हमें भी एक अपने दिमाग में ये पॉसिबिलिटी बनानी होगी कि yes, there is a third level, and we have to go with the flow. We have to go where Charlie takes us. Okay, so we will eventually see कि वो किस थर्ड लेवल की बात कर रहा है, वो अभी कहाँ ट्रैवल कर रहा है. So अभी पहले डिस्कस हो रहा था about his hobby. His hobby was that of stamp collecting. Since quite some time, his grandfather had this hobby of collecting stamps and first covers and all sorts of issues of the stamps that would be released. So his grandfather had this hobby, and it was inherited by Charlie, and he took over his grandfather's stamp collection. So this hobby which he has, this is taken as a kind of escapism by the people around him, like his wife and his friends, especially his psychiatrist friend. So all these things point out, all this imagination of Charlie as well as his hobby, all these things point out, according to his friends, point out to the fact that he is trying to escape from the realities of this world. He is trying to escape from the sadness, from the horror of war, from the worries and tensions of this life. So Charlie is but Charlie doesn't believe in this, and Charlie feels that no, that hobby is just a kind of it's just a kind of passion for him, but when it comes to the third level, then it is really existing over there at the railway station, and even if no one believes it, Charlie believes it. Okay, and he also supports his claim by saying that his grandfather used to collect stamps, but in his times everything was very peaceful and there was no need of escaping from anything. Also, the President Roosevelt collected stamps, and obviously a president doesn't need to escape from anything because he has all the lavishes in his life. So एक president को किसी भी चीज़ से एस्केप करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास हर चीज़ मौजूद है, उसके पास हर फैसिलिटी है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. येस, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट दे डोंट एस्केप. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉबी, अ पास टाइम. और उसी तरह चार्ली कहता है कि ये स्टैम्प कलेक्शन भी मेरा एक हॉबी है. बट हिज अदर फ्रेंड्स, his wife and his psychiatrist friend, and they believe that he is trying to escape from something. Anyway, so this is a kind of different discussion. हम क्या देखेंगे, हमको क्या देखना है कि चार्ली क्या बोल रहा है और चार्ली हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है. चार्ली हमें अपने एडवेंचर में लेके जा रहा है. ओके, सो ही इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब अस कि उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे थर्ड लेवल पे जा पहुंचा.
So we will start from page number 2 in your book Vistas. Okay. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway, heading for the subway, and got lost. So, चार्ली क्या बोल रहा है कि वो अपने घर, वो उसको काम पे लेट हो गया लौटने में, और वो जल्दी अपने घर जाने के लिए उसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक सबवे लिया. व्हाट इज़ अ सबवे? अ सबवे इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्टर रूट. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्टर ट्रेन. ठीक है, जो ट्रेन ऐसे रूट से जाती हैं उनको सबवेज बोलते हैं, जो जल्दी आपको आपके जगह पहुंचा देंगी. ओके, सो सबवे इज़ अ बेसिकली अ शॉर्टर रूट. सो दिस मैन चार्ली ही टुक अ सबवे एंड वो वहाँ पे आए, फर्स्ट लेवल पे उतरे. उसके बाद वो वहाँ से सेकेंड लेवल पे उतरे. ओके, एंड उसके बाद वहाँ पे जब वो देखे कि चारों तरफ सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं वहाँ से सेकेंड लेवल से. ओके, एंड देन वहीं पे आने के बाद वो रास्ता भटक गए. आफ्टर रीचिंग द सेकेंड लेवल ही लॉस्ट हिज वे. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. So क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ये जो मैं गुम हो गया, so it is not something new. ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं कि इंसान अपने आप ही गुम हो जाता है. इट इज़ वेरी मच नॉर्मल, इट इज़ वेरी नेचुरल कि वहाँ पे कोई गुम हो जाए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टेयरकेस हैं, बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं. सो वन टेंड्स टू गेट लॉस्ट. ओके, Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो वो अपने पास एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इससे पहले जब मैं यहाँ आया सेकेंड लेवल पे तो मैं कैसे गुम हो गया था. तो एक बार वो किसी टनल में चले गए थे वहाँ से, और उस टनल से निकलते निकलते 1 मील तक वो चले, और उसके बाद वो जब निकले तो वो देखे उनके सामने रूजवेल्ट होटल आ गया. ओके, और दूसरे एक्सपीरियंस ये क्या बता रहे हैं, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. और अगली बार क्या हुआ, वो जब उस सेकेंड लेवल से के आसपास कहीं गुम हो गए, और जब वो रास्ता खोज कर निकले तो वो कहाँ पहुँच गए, 3 blocks अवे, वो किसी और जगह पहुँच गए ऑन 46th स्ट्रीट. ओके, सो दिस इज़ हाउ ही इज़ टेलिंग अस द रीडर्स कि ये बहुत नेचुरल सी बात है वहाँ पे गुम हो जाना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके, sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. अब देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक था कि वो इतना कंफ्यूजिंग है रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे लोग गुम हो जाते हैं. अब ये क्या ऐड कर रहे हैं चार्ली अपने तरफ से, दैट समटाइम्स आई थिंक, ये कभी कभी ऐसा सोचते हैं, इनको कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, दैट द ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushing out new corridors and staircases like roots. तो ये अब इस रेलवे स्टेशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग दिस एनालॉगी ऑफ द रेलवे स्टेशन लाइक अ ट्री. आप देखिएगा पेज नंबर 3 में भी एक ड्राइंग दी हुई है आपके बुक में, उसमें भी ये एक ट्री की तरह उसमें डोर्स हैं, पैसेजेस हैं. सो ही इज़ काइंड ऑफ इमेजिनिंग कि ये जो पूरा जो रेलवे स्टेशन है इट इज़ लाइक अ ट्री, जिसके रूट्स हैं, और रूट्स हमेशा पुश करते रहते हैं और दूसरे रूट्स को जगह देते रहते हैं. ओके, सो और रूट्स आप किसी भी पेड़ के रूट को देखिएगा, सो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो ये रेलवे स्टेशन को भी एक रूट से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अभी फिर क्या ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये सारे इनके इमेजिनेशन का एक हिस्सा है. ओके, ही इज़ काइंड ऑफ इमेजिनिंग, इसीलिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है probably. देखिए, सो वो वहाँ पे क्या लिखा है, there's probably a long tunnel. अब ये इमेजिन करें कि वहाँ पे शायद एक लॉन्ग टनल हो, इस स्टेशन के नीचे एक बहुत लॉन्ग टनल हो जो कहाँ लेके जा रहा हो, जो इतना नीचे ही नीचे एक हिडन पैसेजवे काइंड ऑफ हो, और वो कहाँ पे निकलता हो, वो टाइम स्क्वायर पे निकलता हो. टाइम स्क्वायर एज यू ऑल नो वो न्यूयॉर्क सिटी में
बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, सिटी सेंटर काइंड ऑफ, ठीक है, टाइम स्क्वायर। सो उसी तरह ये बोल रहे हैं कि या तो वो टनल जो है वो सीक्रेट टनल वो टाइम स्क्वायर में निकल सकता है और वैसा ही कोई सीक्रेट टनल सेंट्रल पार्क में निकल सकता है। सो ऑल दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। ओके, उन्होंने ऐसा कोई टनल देखा नहीं है, बट ही इज़ इमेजिनिंग। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. और ये क्या बोल रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इस ग्रैंड सेंट्रल से स्टेशन से बहुत लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, इट गोज़ ऑन, हर रेलवे स्टेशन की यही कहानी है। सो ही सही कि ये जो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल है ऐसा है कि इस यहाँ से एग्ज़िट बहुत लोग करते हैं। सो ये एग्ज़िट यहाँ पे दो मीनिंग रखता है, एक तो नॉर्मल एंट्री और एग्ज़िट, ठीक है, आप आते हैं रेलवे स्टेशन में एंट्री करते हैं, दूसरे दरवाजे से एग्ज़िट करते हैं। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि इट हैज़ बीन एन एग्ज़िट फॉर सो मेनी पीपल थ्रू सो मेनी ईयर्स। तो जितने सालों से ये एग्जिस्ट कर रहा है, इनका बोलना है कि जैसा इनका एक्सपीरियंस हुआ दैट ही वेंट टू अ थर्ड लेवल, तो उसी तरह ये बहुत लोगों का एग्ज़िट हो सकता है। जैसे कि ये किसी थर्ड लेवल पे एग्ज़िट कर गए, एस्केप कर गए, उसी तरह और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, जो यहाँ से एग्ज़िट करके किसी और दुनिया में चले गए हो। सो ये सारी जो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, ये बोलते हैं कि मैंने ये सारे आइडियाज़ अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं किए हैं। क्यों नहीं शेयर किए? बिकॉज अगर ये सब बात बताएंगे तो वो लोग what they will think that there is some problem either with his mind, or they will start imagining that there really exists a third level which we are not sure whether it exists or not. So the corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought what was wrong, but I kept on walking. So Charlie is kind of on his way towards from the second level, and he is going to find the subway. But what happens, he is moving and he sees that the corridor in which he is walking, it keeps on slanting, and he feels that he is going on a wrong direction, he is going on a wrong pathway, but still he keeps on walking, he doesn't stop. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. So ये चलते चलते एक ऐसे रास्ते चले जाते हैं जहाँ पे कि कोई और एक इंसान भी नहीं होता है, देयर इज़ नॉट अ सिंगल सोल ओवर देयर, और वहाँ पे इनको सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, बिकॉज देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. So ये चलते चलते किसी गलत रास्ते पे चले गए. वहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा था, तो इनको लगा कि ये पता नहीं किधर आ गए, मे बी ही इज़ ऑन द रॉन्ग वे, बट स्टिल ही केप्ट ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग. और फिर चलते चलते वो कहाँ आ गए, ही रियलाइज कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहे हैं रास्ते के जहाँ पे वो चल रहे हैं, उसके एंड में, उस टनल के एंड में कुछ आवाज़ आ रही है. तो वो जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं, दैट रियली यहाँ पे एक ओपन स्पेस है और वहाँ पे अलग अलग लोग हैं. ओके, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. तो ये जब वहाँ पहुँचते तो इनको लगता है अच्छा मैं वापस से घूम फिर के सेकेंड लेवल पे ही आ गया. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. तो जब इनको लगा कि ये सेकेंड रेड लेवल पे वापस आ गए हैं, सो ये थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. तो ये क्या देखते हैं, दैट वहाँ का जो स्पेस है वो कम है, छोटा है, स्पेस छोटा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेवल्स. ओके, एंड व्हाट डज ही सी मोर, ही सीज दैट वहाँ पे टिकट विंडो जो होते हैं, टिकट काउंटर्स, वो भी छोटे छोटे हैं. ओके, और भी कम है, जैसा कि बाकी लेवल्स पे हैं, यहाँ पे उतने टिकट विंडो नहीं है. और इन्फॉर्मेशन जो बूथ है जहाँ पे लोग जाके इंक्वायरी करते हैं ट्रेन्स के बारे में, तो वो जो सेंटर है वो किस तरह का बना हुआ है, इट इज़ मेड ऑफ वुड, और वो बहुत ही ओल्ड फैशन सा है. ठीक है, वो नए ज़माने का कंस्ट्रक्शन नहीं है. ओके, एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. तो अब ये रियलाइज़ इनको हो गया दैट ही इज़ ऑन द
थर्ड लेवल, बिकॉज ऑलरेडी ये बोल चुके हैं आई रियलाइज आई केम आउट ऑन द थर्ड लेवल. अब ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ही इज़ गिविंग कि वहाँ पे उन्होंने क्या इनकाउंटर किया. तो वहाँ पे एक आदमी था जो बूथ पे बैठा हुआ था. उसने क्या पहना था? इंक्वायरी के पास जो आदमी बूथ में बैठा था, ही वोर अ ग्रीन आई शेड. उसने आँख के ऊपर ग्रीन आई शैडो लगाया था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. ओके, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. अब जो वहाँ पे जो लाइटिंग थी वो बिल्कुल अंधेरा सा था, बहुत डिम लाइट्स थी. ठीक है. देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो फिर ये देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अंधेरा सा है, टिकट काउंटर्स में भी अंधेरा. सो वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है. हमारी तरह हमारे वर्ल्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है. अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब से हर काम करते हैं. देयर इज़ ट्यूबलाइट, देयर इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ लाइट्स, LED एंड ऑल दैट. बट ये क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ नहीं है. वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. जो पुराने ज़माने की गैस लाइट्स जो होते थे, काइंड ऑफ लैंटर्न्स, जिनको हम हिंदी में लालटेन कहते हैं. तो उस तरह की ओपन फ्लेम आग आप देख सकते हैं. in the you can see the picture of the open flame gas lights. So this kind of things were used for lighting in the old times, जब इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इन्वेंट नहीं हुई थी. ओके, सो ये अलग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, there were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब ये क्या देख रहे हैं कि एक आदमी है वहाँ पे. वो आदमी उसने अपने पॉकेट से क्या निकाला? ही टुक आउट अ गोल्ड वॉच, पॉकेट वॉच, जो पहले के लोग इस्तेमाल करते थे. अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. अब जनरली लोग रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं. सो ही टुक आउट अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels and had a big black handlebar mustache. So, वो जो आदमी था उसने पूरे ओल्ड फैशन टाइप से उसका ड्रेस था. तो उसने जो टोपी लगाई हुई थी वो एक डर्बी हैट थी. व्हाट इज़ अ डर्बी हैट? अ डर्बी हैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हैट बोल सकते हैं, या बाउलर हैट बोल सकते हैं, जो बाउलर्स जनरली पहनते हैं मैचेस में. Okay, or it is a hat which the horsemen use during their races. Okay, so it is basically a kind of old fashioned hat जो आप देख सकते हैं फोटो में. It is there. Okay, and he wore a derby hat और उसने सूट पहना हुआ था. And he had big black handlebar mustache. ये जो मोस्टैश है ये थोड़ी विंटेज टाइप ऑफ है. ऐसी मोछे जो हैं वो आजकल कम लोग रखते हैं, या वो रखते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है इस तरह से. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल फैशन जो ये देख रहे हैं उस थर्ड लेवल पे. एंड इट इज़ अ टिपिकल फैशन ऑफ द 1800s. Okay, 19th century. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. ठीक है. तो अब ये क्या रियलाइज़ कर रहे हैं दैट जहाँ वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उनका पूरा जो फैशन सेंस है वो 1890s का फैशन है. ओके, आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टशेस इन माई लाइफ. ये क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे मेन वेमेन जितने लोग थे सबका जो फैशन था वो उनके मोस्टैशेस बहुत अलग अलग डिज़ाइन के थे. लेडीज़ के अलग अलग टाइप के बाल बंधे हुए थे, बियर्ड्स थे मेन के. सो इट वॉज ऑल कम्प्लीटली वेरी ओल्ड फैशन. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-button shoes. Back of her, out in the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. And then I knew. So ये और क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो एक लेडी है उसने कैसे ड्रेस पहना है. उसने भी बहुत लेग ऑफ मटन टाइप्स के स्लीव्स हैं उसके, जो टॉप है उसका, और स्कर्ट पहना है उसने. सो यू कैन सी हाउ इट लुक्स इन द पिक्चर. ओके, और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि वो जो ट्रेन है, ट्रेन कैरेज जो है वो बिल्कुल ओल्ड फैशन वाला है. ठीक है, जैसे पहले के ट्रेन्स होते थे फनल शेप्ड, उनके ऊपर धुआं निकलता था इंजन से और बहुत बड़ा इंजन होता था. सो दिस टाइप ऑफ Currier and Ives locomotive train was over there. Okay,
एंड देन आई न्यू, तो ये क्या बोलते हैं, तो इतना कुछ देखने के बाद मुझे समझ में आ जाता है दैट आई एम इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, और ये थर्ड लेवल एक अलग ही दुनिया है. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. तो अब ये अपने आप को श्योरिटी देने के लिए ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं न्यूज़पेपर वाले के पास और उससे एक न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं. कौन सा? द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है वो हमारी इस दुनिया में, मतलब ये राइटर की जो रियल दुनिया है उसमें छपना बंद हो गया. इट हैज़ बीन स्टॉप पब्लिशिंग, बट इन दिस थर्ड लेवल दैट न्यूज़पेपर इज़ अवेलेबल. और जब ये उसको ख़रीदते हैं और उस पर डेट देखते हैं तो उस पर क्या डेट लिखा रहता है? June 11, 1894. सो अब हमको श्योर हो गया दैट ही इज़ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड ही इज़ इन 1894 ईयर and the date is June 11. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States where we wanted to go. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Jallisburg, Illinois. So ये क्या बोलते हैं कि जब मुझे टिकट काउंटर दिखता है सो आई डिसाइड कि ये हमें कहीं का भी टिकट दे सकता है. वी कैन ट्रैवल बैक इन 1894, हम 1894 की दुनिया देख सकते हैं. सो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं जाता हूँ और मैं जैलिसबर्ग का टिकट ले लेता हूँ. ये जो जगह है इलिनॉइस अमेरिका में, दिस इज़ द प्लेस वेयर द राइटर ग्रू अप, और इनकी बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं. इनके ग्रैंडफादर ने भी अपनी लाइफ वहीं पे गुजारी. सो ही लव्स दिस टाउन, दिस सिटी, एंड ही वॉन्ट्स टू गो देयर. What is interesting to know over here is that जैसा कि हमने दी एडवेंचर बाय जयन नरलेकर जो आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, उसमें हमने देखा था दैट द प्रोफेसर जो मेन कैरेक्टर थे वो जो पास्ट में चले जाते हैं. सो ही गोज़ ऑन अ हिस्टोरिकल पैसेज, ठीक है, वो टाइम में हिस्ट्री में चले जाते हैं और वो हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं. क्यों? बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री. तो जिसको जो चीज़ में लगाव होता है, जो उसके कॉन्शियस अनकॉन्शियस में चलती रहती है, सब कॉन्शियस में, तो वही चीज़ में आपको जाना पसंद है, आप उसके बारे में क्यूरियस है, आपके लिए एक काइंड ऑफ वो हाइड आउट है. सो इन द सेम वे दिस जैलिसबर्ग इज़ अ काइंड ऑफ हाइड आउट फॉर दिस चार्ली, ओके, बिकॉज उसको वो जगह बहुत पसंद है और वो वहीं जाना चाहता है. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. तो अब ये जो है चार्ली हमें जैलिसबर्ग का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसको वो टाउन कितना पसंद है. ओके, हैव यू बीन देयर, वो हमसे पूछ रहा है कि आप वहाँ गए हैं. इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, बहुत वंडरफुल है, with beautiful old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with fireflies all around in a peaceful world. सो ये क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो जो जगह है वो बहुत ही एक फेरी टेल सी दुनिया है. वहाँ पे लोग सिगार पीते हैं शाम में और लेडीज़ जो हैं वो फैंस से हवा लेते हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी पीसफुल इवनिंग ओवर देयर, लोग आपस में बैठ के बात करते हैं. ओके, to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. सो चार्ली को वो जगह इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमारी वर्ल्ड की तरह रश नहीं है, हमारी वर्ल्ड की तरह टेंशन वरी नहीं है. वो बहुत पीसफुल सी दुनिया है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मैन वीमेन फैमिली मेम्बर्स. ओके, और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उस टाइम पे. सो दैट वॉज अ मोर ब्यूटिफुल वर्ल्ड, अ मोर पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है. और वर्ल्ड वॉर हमारे जब इस वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो चुका, सो द वर्ल्ड बिकेम अ मोर अगलियर प्लेस, अ मोर लाइक प्लेस जहाँ पे सुकून जैसी चीज़ अब नहीं है. सो व्हाट वी क्रेव, हम सब क्या कहीं ना कहीं क्या क्रेव करते हैं? एक सुकून की लाइफ. So this is what even Charlie is desiring, and he is wanting to go back to the city of his childhood, that is Jalisburg. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband and he figured the fare.
and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. Okay, so जब ये क्लर्क को पैसा निकाल के देते हैं तो वो इनको घूर कर देखने लगता है. ये सोचते हैं कि मेरे पास एटलीस्ट जाने का पैसा पूरा है. ओके, फॉर हिज एंड हिज वाइफ. तो ये उसको पैसा देते हैं तो वो उसको स्टेयर करता है और पैसे को स्टेयर करता है. That ain't money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get very far. तो वो जो टिकट काउंटर पे आदमी बैठा है वो क्या बोलता है कि ये पैसा नहीं है जो तुम मुझे दे रहे हो, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, इफ़ यू ट्राइंग टू स्किन मी, तो तुम बहुत दूर तक इस काम में नहीं जा पाओगे. यू वोंट सक्सीड. ओके, एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. तो अब ये क्या इनको अब रियलाइज़ होता है कि पैसा तो बिल्कुल ही अलग है उस टाइम का. ओके, उस टाइम का पैसा अभी के पैसे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. ओल्ड स्टाइल बिल्स हैं एंड ये अभी के पैसे से उस भी ज़्यादा बड़े हैं. ओके, अभी का पैसा जो है उनका वो उस दुनिया में अब नहीं चल सकता है. ओके, सो दैट मैन इज़ काइंड ऑफ फ्राउनिंग. वो इनको ऐसे सोच रहा है दैट ही इज़ ट्राइंग टू फूल दैट मैन, दिस चार्ली. ओके, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. सो ये जल्दी से क्या करते हैं, अपना पैसा अंदर रखते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं. ही लीव्स दैट प्लेस वेरी क्विकली because what he says, there's nothing nice about jail even in 1894. So he realizes that the money that he has is not the same as the one that the man is expecting from him. And even in 1894, if he gets caught and he is put in the jail, then there is nothing good about the jail even in the year 1894. So this is page number 5, first paragraph, and we will stop here today and we will continue from here in the next lecture. So please keep reading the chapter until we meet again. So thank you and see you.